A very good afternoon, everyone. So today we have nutritionist Yash and coach Shubham who would be presenting their case study. They would be taking us through clients' challenges, clients' background, what goals client had in mind, and how they both helped client achieve their goals. Over to you, Yash and Shubham. Thank you. Yes, thank you so much, Manpreet. And so, good afternoon, everyone. Today, I'm going to present a case of one of our member. His name is Rahul. So today, I'm going through all the his parameters. कैसे हमने work किया था इस journey में in his like इनके lifestyle को कैसे हमने change किया. So this story is not only about the weight loss story. It is a sharing the body. His body is inflamed basically. He is so much tired, overloaded एंड बेसिकली बहुत सारे टॉक्सिकेशंस थे इनके बॉडी में सो एंड हाउ इन 12 वीक्स इट स्टार्टेड हीलिंग इटसेल्फ बेसिकली in the Rahul journey from like high inflammation, fatty liver, high uric acids, and low vitamins levels, continuous fatigue to a body that is a lighter, stronger, and calmer. So हमने कैसे यहाँ पे इनका इम्प्रूवमेंट किया है इस जर्नी में एंड आई वांटेड यू ऑल टू लिसन इट बेसिकली सो if we talk about like his basic parameters so जैसे हम स्टार्टिंग में इनका वेट था दैट इज 82.4 एंड बॉडी फैट परसेंटेज 33.7% बेसिकली एंड ही इज आईटी प्रोफेशनल बेसिकली नाइट शिफ्ट वर्कर एंड इरेगुलर स्लीप पैटर्न थे जंक फूड्स बहुत सारे खाते थे एंड साथ में उनका स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत हाई लेवल पे था बेसिकली so we can see here on the picture, जो transformation picture हमने यहाँ पे लगाई थी, that is overall almost 12 kgs weight loss transformation here we done in this time span. And in this journey, so his body is running 24/7 with the low quality of fuel, like जैसे कि smoking था इनका, जैसे drinking habits था, and सारी चीजें. So how is we cover this everything basically in the journey. So always tired and even after the sleep, and the next thing is heavy bloating and uncomfortable in his own body basically. So can you move to the next slide please? Yeah. So the case conductor was I am Yash and the coach is Shubham. So I handle his nutrition part basically. Here you can see on the screen. So with the properly guidance, his medical conditions like metabolic conditions, medical conditions, जो भी इनके issues थे सारे हमने solve किए इस journey में. And my approach is to prepare a nutrition plan according to that only. Can you please tell about yourself? Hello. Yes. Yes. Shivam here, performance coach from Wildfit. So, meet my client Rahul Raj. He was successfully able to transform himself and feel consistent. बिफोर स्टार्टिंग इन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज को चैलेंजिंग किया था जैसे कि उनको काइफोसिस कर्वेचर बैक पेन इश्यूज था विच इज कॉल्ड एज कर्व बैक इश्यूज और हिप टाइट हिप फ्लेक्सर और बैक इश्यूज और बिग ग्लूटियस मैक्सिमस एंड मिनिमस प्रॉब्लम और इस चीजों की वजह से हमें फॉर्म्स एंड टेक्निक्स पे भी बहुत फोकस करना पड़ा स्ट्रेंथ पे भी फोकस करना पड़ा तो इसके वजह से हमने उनके एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम में अपर बॉडी लोअर बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज किया था जिसके लिए हम टेक्निक्स पे ध्यान रख सके और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान रख सके स्लोली स्लोली जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया तब हमने इनको शिफ्ट किया था इंटरमीडिएट लेवल तक देन वी विल शिफ्ट इनटू स्ट्रेंथ हाइपरट्रॉफी एंड endurance वर्कआउट. So yes, if we move to the next part, that is the client history and the client profile. So if we talk about first history, so the case study is all about the 12-week transformation journey from junk food driven inflammatory state to a healthier, leaner and the version of himself, considering his challenges with high CRP, uric acid, liver function and low vitamins levels. And we design a targeted nutrition approach basically alongside progressive training patterns and the profile is like, as I told you, he's a 31-year-old IT professional, 82 4 kgs weight, battle with the constant fatigue and inflammations from the irregular eating and junk food habits.
So this is all his the client profile and history basically. So can you move to the next slide, please? Yeah, so you can see the body composition here also. In the starting 82.4 and current is 69.8 basically the current weight as you can see on the screen. So the fat mass था उनका 27.9 था and currently is 19.1 basically. So here is a huge changes between this. And can you go to the next slide, please? Yeah. So starting point of weight training, Shubham will go through it. Can you please go, Shubham? बेसिकली वेट ट्रेनिंग में जैसे मैंने आपको बोला था कि उनको जैसे कि बैक पेन इश्यूज था, थोड़ा कोर टाइट और हिप फ्लेक्सर टाइट और ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस, जिसके वजह से उनके रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्मेंस में थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था। वो अच्छी तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से हमने स्लोली स्लोली उनके फॉर्म्स एंड टेक्निक्स में ध्यान दिया। इवन जो अलग अलग से पोस्चर करेक्शन और रिलीफ फ्रॉम पेन कुछ कुछ स्ट्रेचेस है, मोबिलिटी ड्रिल्स है, उस पर ध्यान दिया। तो स्लोली स्लोली हमने जैसे कि लीनियर पीरियडाइजेशन पे शिफ्ट हो गए। स्लोली स्लोली जैसे वहां पे आप देख रहे हो कि स्क्वाट में अभी वो अच्छे से 90 केजी 80 केजी परफॉर्म कर पा रहे। तो उससे पहले उनको वो बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। अगर आप देखोगे तो वो क्लाइंट नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे बिटवीन 9 to 5 o'clock। देन उनका जो कम्प्लीटली वर्क था वो सेडेंटरी था। उसके बाद वो खुद इतने मोटिवेट नहीं होते थे कि एक्सरसाइज वो लेवल तक वो परफॉर्म कर सके। बट स्लोली स्लोली हमने उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज की, उनको मोटिवेट किया। उससे पहले उनको ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसके वजह से उनके जो एक्टिविटी लेवल आउटसाइड द जिम, वो फुटबॉल भी खेलते थे, तो फुटबॉल खेलते समय भी उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वो सारी चीजें। तो वो भी हम स्लोली स्लोली इम्प्रूव करते गए। Next slide, please. So the assessment, yes, Shubham, you can tell the assessment too here. यस, एंड्योरेंस में देखा जाए, हमने जो फर्स्ट टाइम में रॉकवुड टेस्ट किया था, वो उनका वो एंड्योरेंस लेवल बहुत कम था। तो स्लोली स्लोली हमने जो कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस और एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस जो कुछ ऐड किया था, उसमें उनका एंड्योरेंस लेवल भी अच्छे से परफॉर्म हो गया था। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन भी वो उसमें भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। इवन अगेन जो फिटनेस लेवल में आ गया, जो हाँ वेट ट्रेनिंग फिटनेस जो टेस्ट था उसमें जो हमने सामने स्लाइड्स में, हाँ, जो उसमें एक्टिविटीज लेवल थे, तो उसके वजह से वो रिपीटेशन भी बहुत कम परफॉर्म कर रहे थे। तो स्लोली स्लोली जैसे हमने वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे थे, इवन जो वेट ट्रेनिंग में जो हमने बॉडी वेट से स्टार्ट किया, तो बॉडी वेट एक्सरसाइज में उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत वीक थी। तो स्लोली स्लोली हमने उनमें भी रिपीटेशन इंक्रीज करना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस टेक्निक्स। और उसके बाद उन्होंने वेट ट्रेनिंग में स्लोली जो परफॉर्मेंस हमने इंक्रीज किया था उसमें, तो वेट ट्रेनिंग में भी वो अच्छे से कर पा रहे थे वो सारे। Yeah, so if we talk about basically the challenges here, so major challenges to sustainability. हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को सस्टेनेबल रखना था इनके लिए, ना कि एनीथिंग रश बेसिकली। सो यहाँ पे हमने वर्क किया प्रॉपरली टैकलिंग इज डीप सीटेड इन्फ्लेमेशन, नाइट शिफ्ट केसेस टू द ऑप्टिमाइज ओवरऑल हेल्थ। सो एक चैलेंज था, हमें इसे सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना था। सो ओवर द पीरियड ऑफ 12 weeks we advanced by shredding of 12 kgs, normalizing key health markers like CRP, uric acid, and all the other parameters too. So checkpoint एक था कि like not only the fat loss but हमें inner health पे भी focus करना था। So at the same time health and fitness हमने दोनों पे focus किया इस जर्नी में। So can you move to the next slide please? So yes, so training routine overview. So Shubham, please go through it. तो फर्स्ट ट्रेनिंग रूटीन में हमने जो उनको ऐड किया था एक्सरसाइज, तो वो बेसिकली था कि अपर बॉडी लोअर बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज पे फोकस करें। मेन मेन एक्सरसाइजेस प्राइमरी जो मसल की एक्सरसाइज है वो हमने ऐड किया था, जैसे कि गॉब्लेट स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, स्टैंडिंग टास्क, सीटेड टास्क, देन अपर बॉडी सेशन, देन उनका इंड्योरेंस वर्कआउट। सो बेसिक बेसिक हमने स्टार्टिंग में दिया। देन स्लोली स्लोली अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज और जैसे वो परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद हमने स्लोली स्लोली लिनियरली उसमें पीरियडाइजेशन करनी चाहिए। Next slide please. Like, Yeah. यस, सेम एंड्योरेंस टेस्ट में जोन 2 में हम परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि स्टडी स्टेट कार्डियो फॉर 10
15 to 20 minutes basically, with the intensity of 40 to 50%. Next slide, please. अपर बॉडी एक्सरसाइज में भी प्राइमरी एक्सरसाइजेस जो होते हैं हर एक मसल के, उसको हमने पहले टारगेट किया और उससे उनको ट्रेन कर किया है. Yeah, you can change the slide. करेक्ट. यस, करंट फिटनेस रूटीन में हमने उनको स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी एंड कंडीशनिंग वर्कआउट में शिफ्ट किया गया, जिससे उनकी प्रोग्रेस और भी थोड़ा एडवांस लेवल में जाएगी, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ फैट लॉस ही नहीं था. आउटसाइड द एक्टिविटी वो फुटबॉल भी खेल रहे थे, तो वहां पे भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. इसके लिए हमने टारगेट किया. अगेन अभी अपकमिंग कुछ कॉम्पिटिशंस भी आएंगे, तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए हमने वो थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्कआउट भी उनको शिफ्ट किया. जैसे कि हाईरॉक्स कंपटीशन जो अपकमिंग मुंबई में जो होने वाला है, वहां पे हम टारगेट कर रहे हैं कि वहां पे हम अच्छे से परफॉर्म करें, वहां पे भी पार्टिसिपेट करें. इसके लिए हमने वर्कआउट डिजाइन वैसे किया है जो कि स्ट्रेंथ भी फोकस करे, इवन उनका हाइपरट्रॉफी जो कि फैट लॉस के लिए भी हेल्प करेगा और वो भी सस्टेन कर पाएगा फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड अगेन कंडीशनिंग वर्कआउट जो आगे जाके आपको स्लाइड्स में दिख जाएगा, तो वो थोड़ा अलग कुछ एक्टिविटीज जो आउटसाइड होते हैं उसमें भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके. इसके लिए वो सारा करंट में हमने वर्कआउट प्लान डिजाइन किया. Next slide, please. यस, सेम स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट करके, जैसे अपर बॉडी में बैक एक्सरसाइजेस सेपरेटली लिया गया हमने फॉर हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ. देन चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप एक्सरसाइज, अगेन सेम स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yes, next slide. Yes. This is the main exercise which we will focus on the upcoming endurance level and conditioning workout challenges. तो बेसिकली हम ये तो बेसिक एक्सरसाइज है जो हमने अभी ऐड किया हुआ है. स्लोली स्लोली हम इंटेंसिटी इसमें भी इंक्रीज किया जाएगा, जो कि आगे जाके बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करें. बिकॉज एक प्रॉब्लम ऐसा था कि वो कि उनका जो वर्क शेड्यूल है, उसके बाद उन 7 to 8 आवर्स जो भी स्लीप है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली वो वर्कआउट के लिए वो फोकस नहीं कर पा. जो भी उनका सेडेंटरी 9 to 10 आवर्स जॉब, वो भी सेडेंटरी कंप्लीटली, और उसके बाद जो वो स्लीप ले रहे थे वो 6 to 7, मतलब बहुत कम उनकी एक्टिविटी होती थी. तो उसके वजह से वो बहुत लो फील कर रहे थे, डिमोटिवेट फील कर रहे थे, लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे. तो इसके वजह से उनके बाकी की चीजों में इम्पैक्ट आ रहा है. तो हमने स्लोली स्लोली ये चीजें एक्सरसाइजेस ऐड किया गया, जो कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े. और इवन जिस तरह से हम कॉन्फिडेंस लेवल अभी बढ़ा रहे हैं, जो कि आगे जाके भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके वो अच्छा फील करे, प्राउड फील करे. Yes, next slide. Yes, sir. This exercise basically called as compound strength and conditioning workout. Front squat, conventional deadlift, barbell overhead press, flat bench press, farmer row, जो कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ पे फोकस करेगी. जो 8 to 10 रिपीटेशन बिटवीन में हम ट्रेन कर रहे थे फॉर स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ और ओवरऑल फैटनेस. Next slide. Yeah. So the progress timeline, as you can see week by week here. So firstly जो week 1 में हमने gradually start किया था, अभी फोकस डिकोडिंग की उनकी बॉडी कैसे वर्क करती है, उनकी बॉडी का मैकेनिज्म कैसा है. एंड वी इंट्रोड्यूस सम फाउंडेशन डाइट प्लान जहाँ पे हमने बेसिक पैरामीटर जैसे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके डाइट में मिसिंग रहते हैं वो हमने ऐड किए थे टू स्टेबलाइजेस एनर्जी एंड कॉम्बैट इन्फ्लेमेशन बेसिकली. देन वीक 2 में वी बिल्ड अ कोर रूटीन जहाँ पे हम एंड्योरेंस जैसे ट्रेनिंग एंड साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस शिफ्ट कर रहे थे. उसके अकॉर्डिंगली हमें न्यूट्रिशन में भी वैसा ही चेंजेस किया था टू इंक्रीजिंग लिटिल बिट ऑफ मैक्रो जैसे कि प्रोटीन हो गया. देन वीक 3 में वी मूव टू जहाँ पे स्ट्रक्चरल स्प्लिट था इनके वर्कआउट का. सो लाइक जिनकी इंटेंसिटी जैसे से बढ़ रही थी वीक बाय वीक, वैसे वैसे उनके न्यूट्रिशन में भी चेंजेस होते जा रहे थे बेसिकली. सो वीक 4 में वी प्रायोरिटाइज की उनका फैट लॉस को थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेट ट्रेनिंग, जहाँ पे उनके मसल्स को भी थोड़ा इनहेंसमेंट देंगे इस टाइम पे, ताकि उनके बॉडी को थोड़ा कंडीशन भी आ पाए विद द लाइक
प्लान तो कैलोरी डेफिसिट था, बट ऑब्वियसली हमें मेटाबॉलिज्म, उनके हार्मोन्स लेवल्स को भी ट्रैक करना था बेसिकली. देन वीक 5 में वी शिफ्टेड टुवर्ड्स की उनका थोड़ा जो रूटीन रहता है, जो नाइट रूटीन है, जिसके कारण उनका एनर्जी, उनका स्लीप, सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही थी. तो हमें ऐसा एक ट्रेनिंग एंड ऐसा एक न्यूट्रिशन प्लान क्रिएट करना था जिससे उनका अभी जैसे वीक 5 तक आते आते हमारा ऑलमोस्ट वेट लॉस कंप्लीट होते जा रहा था. वहां से हमने कैलोरीज को वापस इंक्रीज करना स्टार्ट किया था ताकि उनके ये सारे पैरामीटर्स पे भी इम्पैक्ट ना पड़े बेसिकली. एंड द लास्ट वीक इज वेरी स्मूदर वीक, जहाँ पे उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए, उनका विसरल फैट चले गया, देन साथ में उनका एक कंडीशनिंग भी आ गई उनके बॉडी पे. सो दिस इज ऑल द प्रोग्रेस. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So यहाँ पे हमने लाइक इनहेंसिंग कार्डियोरेस्पिरेटरी कैपेसिटी, रिफाइंग मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी. सो जैसे मैंने बताया, लाइक फिटनेस इज लाइक अ ट्राइपॉड जिसमें हमें तीनों पैरामीटर्स पे वर्क करना होता है, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी. सो ये तीनों पैरामीटर्स पे हमने वर्क किया. सेम गोज टू न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज आल्सो लाइक अ ट्राइपॉड जहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, जो बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसको हमें बैलेंस करना था. यहाँ पे दिस इज द की हाईलाइट बेसिकली ऑफ द फिटनेस. Then move to the next slide. Yeah, so जो dietary approach था, as we talk कि like there is a lot of inflammation, high uric acid. So firstly मैं majorly focus is on the anti-inflammatory nutrition जहाँ पे scientifically we target reduce systematic inflammation, improve insulin sensitivity, वहाँ पे हमने work किया. Then support liver detoxification, साथ में उनका control uric production basically. Then थोड़े बहुत changes की इसके accordingly हमने diet में, जो कि आगे डाइट प्लान हमने अटैच किया है, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट. सो यहाँ पे हमने हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेस ऐड किए, जहाँ पे एग्स, चिकन, वे प्रोटीन, जिससे हमें हेल्प मिला मसल्स को रिपेयर करने में, तभी जाके हमारे बॉडी में नया मसल बनता है. तो प्रोसेस लाइक मसल प्रोटीन सिंथेसिस की, जहाँ पे उनका ब्लड शुगर स्टेबलाइज हुआ, क्रेविंग्स कम हो गई. देन वी शिफ्टेड फ्रॉम रिफाइंड कार्ब्स टू द कंट्रोल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे कि हमने ओट्स ऐड किए, बीच में मिलेट्स ऐड किया था, राइस ऐड किए, तब जाके उनका एनर्जी स्टेडी हुआ. देन साथ में उनका जो फैट स्टोरेज था धीरे धीरे कम होते गया. देन साथ में उनका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आते गया बाय द टाइम. सो दिस इज द ऑल द अप्रोचेस विद द न्यूट्रिशन, जहाँ पे बेसिक न्यूट्रिएंट जैसे कि टर्मरिक, ब्लैक पेपर, जिंजर, गार्लिक, ऐसे सब चीजें हमने ऐड किए थे इन दिस जर्नी. सो बेसिकली हाइड्रेशन पे भी बहुत ज्यादा वर्क किया है, जैसे कि बटर मिल्क ऐड किया था, देन कोकोनट वाटर ऐड किया था, कुकुम्बर मिंट वाटर, ऐसे सब चीजें इस न्यूट्रिशन इनके डाइटरी अप्रोच में हमने ऐड किया था इस जर्नी में बेसिकली. सो कैन यू मूव टू द नेक्स्ट. या सो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस थे यहाँ पे, बेसिकली जो उनका लाइफस्टाइल था कि लाइक 3 मील्स अ डे लेते थे, जिसमें उनका प्रेफरेंसेस था नॉन वेजिटेरियन मील्स. यहाँ पे उनका करंट एक्टिविटी लेवल जो कि 7 to 8,000 स्टेप्स अ डे ही यूज्ड टू वॉक. स्टार्टिंग में तो ये भी बहुत डिफिकल्ट जा रहा था, धीरे धीरे हमने उनको पुश किया कि लेट्स स्टार्ट थोड़ा बहुत वॉकिंग, ताकि उनका और प्रोग्रेस फास्ट अप हो पाए. मेडिकेशंस तो कुछ नहीं ले रहे थे, बट इंटॉक्सिकेशन इज द वन थिंग कि एवरी वीकेंड उनका ड्रिंकिंग होता था. देन एपेटाइट, अगर फूड प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, सो वहाँ पे हमने नॉन वेजिटेरियन फूड ऐड किया था इनके डाइट में. एंड वी स्टेड कमिटेड टू द बैलेंस एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट क्राफ्टेड approach basically. And initially he was so stressed with a high level of night shift, and because of that उनका स्ट्रेस लेवल, कोर्टिसोल लेवल्स भी थोड़ा हाई था. सो वहाँ पे हमने टारगेट किया कि कैसे हम विद द वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन उस डीप स्लीप को अनलॉक कर सकते हैं बेसिकली. तो दिस इज ऑल द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमने किए थे यहाँ पे. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, so जो इनिशियल फेज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो डाइटरी अप्रोच था, बेसिक डाइट प्लान था उनका, जो कि उनके डाइटरी रिकॉल के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया था. देन उनके लाइक ऐसे कोई मील्स नहीं थे, जब भी उनको टाइम मिलता था ही यूज्ड टू इट, नॉट कि ऐसा कुछ अलाइन करके वो खाते थे. बट हमने एक चीज वहां पे ऐड की कि लेट स्टार्ट विद द अलाइनमेंट ऑफ द मील, बेसिकली मील 1, मील 2, उसके अकॉर्डिंगली वी विल प्लान. देन धीरे धीरे करके हमने उसको थोड़ा इंक्रीज किया, प्रोटीन इंक्रीज किया, बीच में हमने चिकन को भी ड्रॉप कर दिया था डाइट प्लान में. अभी जो करंट डाइट पैटर्न चल रहा है, इन द यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड इज द फर्स्ट पैटर्न एंड द राइट हैंड साइड इज द करंट डाइटरी पैटर्न, जहाँ पे अभी करंटली फेस पे हमने पूरा ही लोअर साइड पे काफ पे चले गए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि उनका वेट भी स्टक हो गया था एट द 72. सो वहां पे हमने थोड़ा पुश किया प्रोटीन को और भी ज्यादा, लाइक 30-40 ग्राम से इंक्रीज किया था डाइट में, तब जाके उनका वापस से लाइक रिडक्शन स्टार्ट हो गया. यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन जो बाकी के डाइटरी अप्रोच थे. कैन यू प्लीज चेंज.
या सो दिस इज ऑल द न्यूट्रिशन पैटर्न जहाँ पे बीच में हमने लाइक लो कार्ब्स नो कार्ब्स डे एंड ऐसा भी पैटर्न यूज किया था इन इस जर्नी जहाँ पे कुछ दिन लोअर कार्ब्स थे वीक में, कुछ दिन नो कार्ब्स थे वीक में. सो कार्ब साइकिलिंग वी यूज टू एड इट. देन बीच में ऐसा था कि कार्ब साइकिलिंग निकाल के वी मूव टू द बेसिक प्लान. जस्ट लंच में हम कार्ब साइकिलिंग ऐड किया था, दैट इज अ लो कार्ब्स नो कार्ब्स ऐसा दैट थिंग जिसमें नो कार्ब्स के दिन बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन हमने कर दिया था इनके प्लान में. देन इन बिटवीन नॉर्मल प्लान पे भी हम शिफ्ट हो गए थे एंड लाइक बीच में हमने दाल राइस प्लान भी ऐड किया था जो कि बेसिक प्लान था प्रोटीन को थोड़ा ड्रॉप करके. तो दिस इज ऑल द न्यूट्रिशन पैटर्न्स हियर. सो कैन यू शिफ्ट द स्लाइड. या सो तो सप्लीमेंटेशन बेसिकली ज्यादा कुछ सप्लीमेंटेशन हमने ऐड नहीं किया था. जस्ट हमने वर्क किया इनके डेफिशिएंसीज पे एंड इनके इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स पे. सो इनाफिक ल्यूफिक्स भी ऐड एंड यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा हेल्प मिली विद द मिल्थिसिलन करक्यूमिन का जो कॉम्बिनेशन रहता है इसमें टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. सेम गोस टू लाइक जिंक फेट. सो जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हुआ इनके बॉडी में, इम्यूनिटी पे वर्क किया एंड एंजाइम फंक्शंस को बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी लाने में हेल्प हुआ था इसमें. सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी तो बिकॉज ऑफ दैट वी एडेड दिस. देन B12 एंड B9 वी एडेड बिकॉज ऑफ इनके होमोसिस्टिन लेवल्स थोड़े हाई थे. सो इनका इसका कॉम्बिनेशन हमने ऐड किया इन दिस जर्नी बेसिकली. देन मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. कैन यू या सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन उनका जो पहले का मील शेड्यूल था एंड करंट मील शेड्यूल. सो यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ कि पहले जो उनका कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक परसेंट था दैट इज 75%, 20% प्रोटीन एंड 5% फैट. सो हमने उसको थोड़ा अभी करंटली बैलेंस किया है, लाइक 50% प्रोटीन पे लेके गए, 20% फैट एंड 30% कार्बोहाइड्रेट्स. सो करंट मील पैटर्न्स लुक्स लाइक दिस. पहले बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स थे जिसके कारण ग्लूकोज लेवल थोड़ा हाई था इनका बॉडी में. सो थोड़ा हमने उसके डिप्लीशन पे वर्क किया, देन उसको बैलेंस किया, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बैलेंस किया. देन बाय द टाइम उनका पूरा ही अप्रोच चेंज हुआ एंड करंटली इज फॉलोइंग प्रॉपर बैलेंस मील्स बेसिकली. So can you move to the next slide? हाँ, so इनके जो initial थे blood parameters, currently we are working in this journey. This is ongoing transformation. So current blood test हमने लिया नहीं. Next month there will be the जो हमने schedule किया हुआ है. But you can see the start की कितना ज्यादा high था. Like uric acid is around 9, vitamin D deficiency is around 11, SGOT is 39 थोड़ा high था, CRP is 3.10 that is also high. Then cholesterol levels, like SGBT is 88, B12 157, homocysteine 62. तो दिस आर द इनिशियल स्टेज एंड अभी उनका जो नेक्स्ट शेड्यूल है जैसे ही आता है विल ऐड हियर बेसिकली. एंड मोस्टली इतना होने के बाद आई कैन सी कि दैट कैन रिवर्स इजीली. सो यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो हियर आर फ्यू मिल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन जो वो फॉलो करते थे बेसिकली. एंड सो आई ओनली टेल की लाइक दी ये ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज जर्नी जो हमें बताती है कि वी इफ यू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन आपके लीवर को अगर आप सपोर्ट करते हो, अगर करेक्ट वाइटामिन एंड करेक्ट ट्रेनिंग अगर आपके बॉडी को प्रोवाइड करते हो, सो यू कैन शिफ्ट योर कंप्लीटली लाइफस्टाइल बेसिकली जो कि स्ट्रेसफुल आपके सारे पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो. सो दिस इज द वन एग्जांपल जहाँ पे उनका भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन था, उनका भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था इस जर्नी में जिसका हमें भी हेल्प मिला है. एंड वी वर्क हियर एज ए टीम बेसिकली, तब जाके हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉसिबली लाइक कंप्लीट किया बेसिकली. सो कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So yes, so this is all the journey basically, and yes, so thank you so much for the listening.